So let's go on to page number 85. Sum number 16. Page 85 now, Badeband. Sum number 16. Neela and Sheila are the partners of the partnership firm sharing profit and loss. Underline karo. They are sharing profit and loss in their capital proportion. They are sharing profit and loss in their capital proportion. Take up your pencil. Let's start the bifurcation. Neela's capital and drawings. Neela's capital drawings. Partners capital. अच्छा इसमें capital वाली amount कौन सी है? Credit side वाली. और drawings वाली amount कौन सी? Debit side. बहुत बढ़िया. तो नीला and शीला दोनों का partners capital में जाएगा. Then suppliers and customers. क्या से suppliers are the creditors तो उसके माथे पे लिखो it will be liability. And customers are our customers. They are the debtors, they are the asset. Then goods returned. Trading में जाएगा ना डेबिट साइड वाला जो 2000 है that is तो वहां पर पेंसिल से लिखो 2000 is our sales return and जो 3000 है that is my purchase return. Then bills. Bills, asset and the debit side वाला है bills receivable and credit side वाला जो है that is bills payable. Then next, cash and a bank. Again, asset and liability. Asset and now cash will go to asset, bank will go to liability. बहुत बढ़िया. Backed and backed reserve. क्या है इसे P&L में वो TAAT उसका टेबल बना के हमें करने का. Then purchase and sales. Purchase and sales. Trading account. Wages and outstanding wages. Wages. Wages will go to trading. And outstanding wages, liability. Outstanding wages will go to liability. Then machinery, asset. Depreciation on machinery. उसमें उसको प्लस करो because देखो नीचे एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन का अलग से. तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है we need to add it back. Asset. Furniture, asset. Opening stock, trading account, prepaid insurance, asset, salary, P&L, insurance premium, P&L, rent and tax, P&L, advertisement expense, P&L, goodwill, asset, leasehold building, star karo, very important hidden adjustment. Leasehold building, very important hidden adjustment. Then 8% Leela loan, liability. Adjustments पढ़ के पहला वाला तो closing stock का है तो कुछ टिक नहीं कर पाएंगे. Capital पर टिक करो. Then drawings को टिक करेंगे. Debtors, that is customer and backdated reserve को टिक करो. Then rent and salary को टिक करो. मशीनरी एंड फर्नीचर को टिक करेंगे. कितनी चीजें बनने वाली हैं अपनी? कितनी चीजें बनने वाली हैं? बेटा, did you make the format? Yes. Give me some 5-10 minutes. I'll make the format. Trading account of Neela and Sheila for the year ending on 31/3/17. Particulars, amount, particulars, amount. This is credit. यही जगह पर मैं फिर पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट बना दे रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नीला, बड़ा बड़ा हंसी आ रही है शीला पे। The next, profit and loss account for the year ending on 31/3/17, particulars, amount, particulars, amount. Now this is credit. Then the next thing what we need to make is the balance sheet as on 31/3/17. मैं बना रहा हूँ बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन भी बना रहा हूँ, तुम टेंशन ना लो। Liabilities amount. Now liabilities is credit. Asset जो है वो है debit, and this is amount. And the lastly we make is profit and loss appropriation account. Particulars amount, particulars amount. Sure? P&L, P&L, P&L. But I could see many of them making the format along with me. That's good, that's good. You need to ignore the message which has been given in the group. छुट्टी वाले मैसेज नहीं पढ़ते हो ना तुम लोग, जब क्लास में छुट्टी होती है तब? वो तो सर पढ़ के मोबाइल हवा में उछल जाता है, रे मजा आ गया। पढ़ाई का कोई मैसेज आएगा करेंगे यार, फॉर्मेट बनाने में कितनी देर, सर भी बनाएंगे तब उनके साथ साथ बना लेंगे हम। चलो ठीक है, चलो मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा नीला का कैपिटल कहाँ जाएगा पार्टनर्स? So 1/4/16 by opening balance. Neela's capital is 1 lakh and Sheila's capital is 50,000. Then drawings कहाँ जाएंगे? Drawings 31/3/17 to drawings. बेटा नीला में 20,000 और शीला में 14,000. Then next, suppliers and customers. Suppliers will go on to the liability side. Suppliers, and as I said, credit लिखा ही है मैंने liability में, तो credit वाली amount देखने की. Suppliers will go to the liability and customers जो हमारे debtors हैं 90,000 we write in the inner column because we have adjustment to that. Okay. Okay. Now beta how do we write this? Goods returned है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़े? तो पहले परचेज और सेल्स थोड़ा नीचे से देख के उठाओ। परचेजेस आर 1,40,000. Purchases are 1,40,000 and my sales are how much? 2,60,000. 2,60,500.
नाउ परचेज में से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न। कितनी बड़ा अमाउंट है परचेज रिटर्न की? 3000। सो 1,37,000। અને सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी है? सेल्स रिटर्न 2000। सो 258,500। 258,500। Then cash and bank. So cash will come in the balance sheet. Cash balance. But how much is the amount of cash balance? मैं लिख रहा हूँ ना, लेकिन मेरे को पहले कैश लिखने का था। तुम भी यार, मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता था। कैश इज 1000 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज 14,000। अब मुझे बिल्स लिखने का था। तुम भी यार सोते रहते हो, देखो कैसे जग गए। बिल्स रिसीवेबल is 15,000 and bills payable 20,800. देन बड़ा बैड डेट और बैड डेट रिजर्व के लिए क्या करने का? क्या वैसे उसमें एडजस्टमेंट है? सो टाट का टेबल बनेगा। बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट प्लस BDR एज पर एडजस्टमेंट लेस BDR एज पर ट्रायल बैलेंस। अरे आगे ना। Now what is bad debt as per trial balance given? What is bad debts? 400 अरे as per trial balance कितना है? 1300। As per trial balance it is 1300। फिर देखो मैंने परचेज एंड सेल्स तो लिख दिया, क्योंकि वो रिटर्न विटर्न लिखने का था तो परचेज सेल लिख दिया। देन वेजेस कितने हैं मेरे? वेजेस 35,000 आर माई वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल गो टू लायबिलिटी। कितनी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस की? 2,000। Outstanding wages are 2,000. Then machinery. Machinery की अमाउंट कितनी है? 36,500 प्लस जो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया है 3,500. So outer column, sorry, inner column. Keep it because we have adjustment of depreciation to that. Then next is furniture. How much is my amount of furniture? 12,000. Then opening stock. Opening stock 46,100. Prepaid insurance. Prepaid insurance 200. Salary 23,000 in the inner column. We have adjustment to that. Then we have insurance premium 2,000.
देन रेंट एंड टैक्स में भी एडजस्टमेंट है. रेंट एंड टैक्स इट्स 12,000. Advertisement expenses how much? 2,900. Goodwill will go on to the asset side. Goodwill 72,000. Then leasehold building, very important adjustment. इसी के लिए पूरा सम कर रहा हूं. बाकी के जो 6 एडजस्टमेंट दिए हैं वो तो बहुत इजी हैं. यहां पर 1/4/14 से 5 साल के लिए है. एंड द अमाउंट इज 14,000. राइट दैट इन द इनर कॉलम. And last 8% लीलाज लोन 1/11/16 અને अमाउंट आती है 30,000. अमाउंट है 30,000. बेटा હું રાહ જોઈ રહ્યો છું. આરામથી પેલા આટલું પતાઈ દો. ચલો बेटा बातें नहीं प्लीज. बेटा कैन आई गो टू द एडजस्टमेंट? लेट्स स्टार्ट. सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक बुक वैल्यू इज 1,10,000 and the market value is 20% more. Market value is 20% more. Now beta you are smart kid. You are a smart kid. Now closing stock का अपना रूल क्या है वैल्यूएशन का? बुक वैल्यू के मार्केट वैल्यू whichever is less. So do we need to calculate market value? Even if I calculate, ultimately when I compare, मेरा बुक वैल्यू कम आने वाला है. तो मैं उसकी मार्केट वैल्यू ढूंढ के क्यों टाइम वेस्ट करूं? हम सीधा ही वो बुक वैल्यू ले लेंगे. स्मार्ट किड्स के वर्किंग करके बताऊं? नहीं. कितना भ्रम है तुमको कि तुम स्मार्ट किड हो. अच्छा क्लोजिंग स्टॉक. चलो 2 ही पे कौन देगा? क्लोजिंग स्टॉक. प्रीत क्लोजिंग स्टॉक. पार्टनर्स कैपिटल. या सही जा रहा है बेटा, सही जा रहा है. PNL on PNL. बैलेंस शीट में कहा? बेटा क्लास में आना उसके लिए बहुत जरूरी है. नरेंद्र क्लोजिंग स्टॉक बेटा. ट्रेडिंग में कहा? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट लिखो. सही है. चलो लिख लो. बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 અને
અને બેલેન્સ શીટ में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000. Closing stock in the balance sheet 1,10,000. Okay. Okay. 6% interest is payable on partners. स्वीटी इसकी तो इफेक्ट कहां जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल में कितने जन बोलते हैं इफेक्ट सही लग रही है? P&L के क्रेडिट साइड, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट. लिख लो, चलो सही है सही है सही है. 31,317. What's the rate of interest? So by interest on capital 6% अगर मैं गिनूं तो ये 6,000 ने इस पे 3,000. 1 लाख का 6% is 6,000. 50,000 का 6% is. But second effect. Appropriation में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अरे नीला अने शीला बेटा 6,000 और 3,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की देखो पहले से ही अमाउंट दे दी है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. कितना है? कितना 900. अने कार्तिके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड. वेरी गुड, लिख दिया जाए. To interest on drawings. But what's the amount? 900 and 600. Appropriation credit side. Interest on drawings. Neela and Sheila. Okay. But can I go to the fourth adjustment? Can I go to the fourth adjustment? What does this say? Come on, tell me. Provide 5% bad debt reserve on. Provide 5% bad debt reserve on. ध्रुव भाई, किधर जाएगा ये डेटर का इफेक्ट? 8% BDR बनाने का है. ध्रुव वेरी गुड. कस्टमर्स में से माइनस और दूसरी इफेक्ट कहना से टाट के टेबल में आ जाएगा. बहुत बढ़िया. चलो गिनो इसके 5% गिनो. 5%. तो लेस BDR as per adjustment 5% is 4,500. So 8,500 and BDR is 4,500 as per adjustment कुछ भी नहीं है. दोनों को प्लस करके 1,300 माइनस कर दो. 30. जोरदार, जबरदस्त. बेटा कौन से एडजस्टमेंट में तकलीफ लग रही है? एक भी नहीं. पक्की बात लगेगी बेटा, जब हम लीज होल्ड बिल्डिंग करेंगे तब लगेगी. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग की कुछ बात हो रही है. क्या क्या चीजें आउटस्टैंडिंग है? रेंट अने कोई बोलेगा नहीं. पूजा आ सैलरी અને રેન્ટ જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એની બે ઇફેક્ટ શું લખું ભાઈ? રેન્ટ 300 બાકી છે, સैलरी 950. सैलरी में से
माइनस कर दूं, बहुत बढ़िया। फिर बेटा आउटस्टैंडिंग, इतना तो हमको आना ही चाहिए। निधि, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में ऐड करूं, बेटा असेट में जाएगा, असेट में जाएगा। इट गो टू क्यों लायबिलिटीज? अरे હું आउटस्टैंडिंग चे लायबिलिटी में કેમ જશે એવું પૂછું છું। कहना से अभी वो पे करने। बेटा असेट में कहाँ जा रहा था वो? बेटा खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, यहीं पर खत्म। आउटस्टैंडिंग सैलरी 950, so 23950 અને आउटस्टैंडिंग रेंट कितनी अमाउंट है भाई? 12,300। बेटा दूसरी पे कहाँ जाएगी? लायबिलिटी। क्या गजब तुक्का मारते रहते हो यार। सर जहाँ जगह दिखी वहां लिख डालने का, ऐसा जैसा सोचने का नहीं। सही पढ़ा तो सही, नहीं तो 3-4 मार्क्स तो मिलेंगे नहीं यार। ऐसे दान धर्म के मार्क्स हम ले लेंगे सर। लास्ट एडजस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन वाला भी देखो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा। 100% कहना से प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है? अरे फर्नीचर पे इट्स 5%। वनराज कहा जाएगी दो इफेक्ट? असेट में क्या करूं? माइनस। हाँ क्या कहना है बेटा? माइनस होगा है, माइनस होगा। दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? पीएनएल डेबिट साइड, डेबिट। पक्की बात। श्लोका इफेक्ट्स वजह से डेप्रिसिएशन और पीएनएल में खुशी सेम लिख डालो, लिख डालो। डेप्रिसिएशन एट 10% 4,000, so 36,000। अरे फर्नीचर पे व्हाट्स द रेट? so 11,400। Better than give the heading working note number 1. Working note number 1. मुक्ता any doubt? Any doubt? पक्का 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 ना? कल का समझ में आया था क्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट? पक्का लिखो चलो। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ। दूसरी इफेक्ट नहीं लिखी मैंने अभी तक? अरे कॉपी करने वालों आई एम सॉरी, कॉपी करने वालों। डेप्रिसिएशन मशीनरी का है 4,000 और फर्नीचर का है अब बेटा हम लिखेंगे चलो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीला's लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीला's लोन
अच्छा यहां जरा ध्यान, लीला ने ये 30,000 का लोन दिया कब है? 1/11 को। तो लिखो जरा 30,000 लोन रिसीव्ड ऑन 1/1/2016, 1/11/2016। सो 1/11/2016 से 31 मार्च का अगर मैं डेट लिखूं कितने महीने होते हैं? सो लिखो वहां पर इंटरेस्ट वुड बी कैलकुलेटेड फॉर 5 months, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। गिन के दो, चलो अमाउंट गिन के दो। बेटा अमाउंट इज 1000, कितनों का आ गया 1000? इन्हीं इसकी दो इफेक्ट कहां जाएगी? लीला लोन में से माइनस होगा, लीला लोन में से प्लस होगा प्लस करेंगे। अच्छा और P&L डेबिट साइड। पीएनएल में लिखा जाए, पीएनएल में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन, આપણે જે 12માં કરીએ છીએ લીલા લહેર લોન। बड़ा क्यों झूठ बोल रहे हो यार? और यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, सो 31,000। And now we go to that adjustment for which I am doing the leasehold. Drop your pens. Drop your pens. Can I say, if you see the leasehold building adjustment, it says we took this building on 1/10/2014. It is taken on 1/10/2014. Can I say which is my current year? Can I say my current year is, can I say 1/4/2016 से लेके 31/3/17, that's my current year? Yes or no? Yes. But we took this building before my current year? Yes. कब लिया? 1/10/2014। और कितने साल के लिए लिया? 5 साल। कितने साल के लिए लिया? 5 साल। Can I say मेरे करंट ईयर में आते आते बिल्डिंग कुछ हमने प्रीवियसली यूज ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो उनका रेंट ऑलरेडी इसमें से वो माइनस हो गया होगा अर्लियर ईयर्स में। हाँ कि ना? लेकिन करंट ईयर के पहले मेरे को देखना है कि हमने पहले और कितने ईयर उनको यूज कर लिया। एंड अब हम देखेंगे कि करंट ईयर से कितना टाइम बाकी है, करंट ईयर से कितना टाइम बाकी है, और करंट ईयर के पहले कितना हमने ये बिल्डिंग को ऑलरेडी यूज कर लिया है। सो अगर मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूं 1/10/14 से 31/3/15, सर 31/3/15 तक क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां पर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। सो वहां पर अगर मैं देखूं तो 6 मंथ्स है। यस और नो? देन दूसरा साल मेरा शुरू हुआ 1/4/15 से लेके 31/3, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड इसके तुरंत बाद देखो मेरा करंट ईयर शुरू हो गया। सो हाउ मच पीरियड इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड? How much period is already expired before my current year? 1.5. That period is already expired. मतलब उतना लीज इसमें से ऑलरेडी माइनस हो गया है। अब 5 साल में से 1.5 ईयर हो गए खत्म।
कितने बाकी बचे? कितने बाकी बचे? तो ये जो 14,000 की अमाउंट है वो कितने टाइम पीरियड तक की है? 3.5 तक की है। सो मैं क्या करूंगा, करंट ईयर से मैं ढूंढूंगा रिमेनिंग पीरियड कितना है। रिमेनिंग पीरियड कितना है? 5 साल के लिए लिया था, माइनस 1.5 years, so it's 3. And this amount will be now written off over a period of 3.5 years. So 14,000 divided by 3.5 years में करूं तो 4,000 का अमाउंट आएगा। 4,000। तुमने अगर ये 14,000 डिवाइड बाय 5 और ये सब कर दिया तो अमाउंट गलत बैठेगी। अमाउंट गलत बैठेगी लेकिन बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि तुम एक डेबिट इफेक्ट दे रहे हो, एक क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो, तो बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी, बट दैट अमाउंट विल बी रॉन्ग। लेकिन नया पॉइंट क्या है समझ में आ रहा है? हमने अभी तक लीजहोल्ड बिल्डिंग के कैसे एडजस्टमेंट देखे हैं कि जब करंट ईयर में से ही हमने वो बिल्डिंग को यूज करना शुरू कर दिया हो, लेकिन ये वाले एडजस्टमेंट में ऐसा हो रहा है कि करंट ईयर के पहले से हम ये बिल्डिंग को हमने एक्वायर करके यूज करना शुरू कर दिया। तो मैंने पहले कैलकुलेट करा कि कितना ईयर ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है बिफोर माय करंट ईयर, અને પછી જેટલું રિમેનિંગ પીરિયડ હતું, this amount is for that remaining period, तो हमने उस पीरियड से उसको डिवाइड करके राइट ऑफ करने का। पक्की बात? क्या करूं, ये 4,000 इसमें से तो लिखो लेस लीज रिटर्न ऑफ 4,000, सो आउटर कॉलम इट्स 10,000, outer column it's 10,000, अने बेटा लीज रिटर्न ऑफ की दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? दूसरी इफेक्ट P&L में डेबिट साइड 2 लीज रिटर्न ऑफ 4,000 2 लीज रिटर्न ऑफ 4,000। बड़ा श्योर है हम? वर्किंग कर ली सबने के बाकी है? आई एम वेटिंग। बेटा कर लो। અને પછી આપણે ટોટલિંગ કરીને સમ પતાઈએ, કેમ કે તમે તો ટોટલિંગ નહીં કરો હે ને? बेटा हो गया, हो गया। बेटा is the working part done? That's what I'm asking. The important point was कि कितना year expire हो गया ना, what's my remaining period? So that amount of 14,000 is for that remaining period. Do you get that? Now beta chalo let's close. Let's close. Debit credit which side total is greater? Clearly it's the credit side. 368,500.
368 એમાંથી આ ત્રણે ત્રણ આઈટમ માઇનસ કરો 150 400. This is my gross profit 150 400. It's my gross profit. But where will I transfer this gross profit? So by gross profit 150 400. It's 150 400. बेटा डेबिट क्रेडिट में कई साइड નું ટોટલ વધારે છે ક્રેડિટ સાइड 150 400 में से ये सारी चीजें माइनस करो 96. बेटा दिस इज माय नेट प्रॉफिट. बेटा कॉपी करने वालों ने कैलकुलेटर अंदर रख दिया है. बेटा ये होता है जज्बा कॉपी मारने का. एटलीस्ट डेस्क पर रख के एक्टिंग तो करते कि सर कैलकुलेटर के बटन कुछ हम ऐसे दबा के कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पूरी बैटरी बचाऊंगा सर. अने बोर्ड एग्जाम में भी सर मेरे को नहीं जरूरत है कैलकुलेटर की. बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूंगा 96050. सो अगेन क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 97550 में से 9000 जाने दो 8 8850 8850. नाउ ये जो आया वो है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट. बेटा जो नीला और शीला में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब बेटा जरा पहली लाइन पढ़ो. बेटा पहली लाइन पढ़ो. इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो. अरे बेटा इधर ध्यान ध्यान ध्यान. कैपिटल रेशियो 1,00,000 ने 50,000. बेटा उसकी वर्किंग करके दिखाऊं 2:1. अरे गंवार जनता बोल तो नहीं यार. वर्किंग करूं 1,00,000 ने 50,000. सीधा हिसाब बैठता है 2:2. सो इसका 2:1 अगर मैं करूं तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा. बिल्कुल घबराना मत. राउंड ऑफ कर दो. 59033 અને शीला 29517. 59033 અને 29517. बेटा वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो 59033 and 29517. And when we close partners capital account, definitely the credit side total is more. How much is the amount, beta? Credit side total 165033. 165033 82517. 82517. 82517. એમાંથી આ બંને માઈનસ કરો 144 અને 67917. This is my closing balance.
बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो जो बैलेंस आया है वो है क्रेडिट बैलेंस। सो वो लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा कैपिटल ऑफ नीला थ्री फोर डबल वन बेटा मिशन इम्पॉसिबल। बेटा ये सम करने में मेरे को कितनी मजा आ रहा है, देखो पूरा बोर्ड भर दिया है। बस तकलीफ यही है कि तुम्हारा दिमाग में कुछ जाता नहीं, हो कब भरेगा पता नहीं। बेटा ये तो कोई पिक्चर है जो कमिंग सून। सर मेरे दिमाग में इतना है कि બધું છલકાઈ જાય છે એટલે આ બધું આવતું નથી।